Hey friends, in today's quick tutorial, I will show you how to add show or hide passport toggle with an eye icon. Eye means मैं बोल रहा हूँ आँख, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो. दिस आई आइकन जो एक बार क्लोज हो रहा है और एक बार ऑन हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम मेरा जो पासपोर्ट है वो हाइड भी हो रहा है और अनहाइड भी हो रहा है. सो वी विल यूज HTML, CSS एंड JavaScript. लेट्स जंप राइट इन. अब मेरे स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, जो कि मैं कर रहा हूँ कि मैं जो आँख है, जो आई है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ और वो क्या हो रहा है, उसका जो पासवर्ड है वो हाइड एंड अनहाइड हो रहा है एट द सेम टाइम. जो आँख है वो एक बार कट लग रहा है उस पर और एक बार कट नहीं लग रहा है. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, index.html, style.css एंड script.javascript फाइल्स को क्रिएट कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको हम जनरेट कर लेंगे. एंड आफ्टर जनरेटिंग द बॉयलर प्लेट कोड हमें क्या करना है, जो style.css है और script.js है उनको अटैच कर लेना है अपने HTML फाइल पर. ओके, डन कर लिया हमने. एट फर्स्ट आई विल क्रिएट ए div with class container and inside the div I will create a h2 tag where I will write sign in. वो होता है ना, जैसे कि हम साइन इन साइन अप करते हैं, वहीं पर तो पासपोर्ट का हमेशा यूज होता है ना, कोई भी चीज़ रजिस्टर कर रहे हो उस पर यूज है. देन आई विल क्रिएट ए div with class सब कंटेनर एंड देन आई विल क्रिएट ए इनपुट where I will change the type from passport to text. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो टाइप है उसका वो टेक्स्ट से उसको पासपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर इसी चीज़ पे तुम्हें फोकस करना है. देन आई विल क्रिएट ए ID पासपोर्ट एंड प्लेस होल्डर एंटर पासपोर्ट. तो अभी जो मैंने टाइप को चेंज करके पासपोर्ट कर दिया, इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है इस पूरे प्रोजेक्ट में, जिसको आपको जानना पड़ेगा यहीं पर. देन आई विल क्रिएट ए बटन विथ ID शो डैश हाइड एंड ए ऑन क्लिक एट्रीब्यूट. ओके, इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे क्या रखना है. अब मैं क्या करता हूँ, जो वेबसाइट है उसका लुक्स जिस तरह से दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारा वेबसाइट दिख रहा है. तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा. ओके, इसको भी कट कर देते हैं, कोपायलट को हटा दिया मैंने और इसको थोड़ा सा बड़ा कर. एंड style.css इनको पहले ऊपर लगा लेते हैं. ओके, डन. देयर इज अ वेबसाइट नेम एज हीरो आइकन्स, जहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स देखने को मिलेंगे और यहीं से मेरा जो आंख वाला आइकन है, कट आई नॉन कट आई बोल रहा हूँ मैं, हाँ जो भी हो, तो मैं इनको क्या करूँगा, इनका जो SVJ लिंक है उसको कॉपी करूँगा एंड देन आई विल paste the SVJ link here and just create a ID inside this SVJ icon and it is show I and then I will copy the another another cut I, that is I will create a ID inside hide I. Okay, now you can see this I inside the button. Now I will give some style to the whole page. So first of all I am going to start with the body. Let's say display flex, align items center, justify content center and let's give some height to the body. Okay, this is the page looks like. Let's give some height to the body, height 100 VH. Okay, now I will give some style to the container. Background color light blue. I am giving background color light blue. Padding 20 pixel. Border radius, okay, border radius, let's say 10 pixel. And one of my favorite CSS styling, that is box shadow 04 pixel, 10 pixel, RGBA 0.1. And whenever I increase the 0.1 to different value, 0.4 to different value, then the box background shadow becomes more darker or lighter. Okay, let's take 0.3. It's look perfect. And I'm going to change the background color into more dark blue.
Give some style to the sub container now. Background color, let's say red. Now give some style to the buttons. Okay, I think I have a ID in the button, so I will use the ID, that is show hide. This is the ID show hide, show dash hide, and display flex, align items center, and justify content center. Okay, now let's give some CSS style to the SVG. Height 20 pixel and width also 20 pixel. Now take a look. Wow, looking beautiful by the way. Give a width to the sub container 270 pixel. Now I am going to give display flex because I need the both content in a same line. Display flex, align items center, and justify content center. Looking pretty good. Give some width to the show hide button, and first of all giving height 100% and border none. This is a part of CSS only. You can skip this CSS if you only come to learn the JS. By the way, JS is the purpose of the video, not CSS. Okay, give some white 15% and it is looking good. Border none. I remove the border from the input. Cursor, giving cursor pointer to the button. So when I hover on the button, then my pointer will change into a cursor. My cursor will change into a pointer. Okay, padding becomes too much. I will change the padding. I will decrease the padding. Okay, decrease the padding to 2 pixel. Okay, just increase slightly. 3.5. Okay, 3.4 will be perfect. Yes, 3.4 is perfect. Now let's give some border radius. Okay, first I want to remove the outline from the input when I focus on the input. So what I have to do, just write input focus outline none. Now you can see the outline removed from the input when I click on the input. बटन, ओके, बटन को भी थोड़ा सा एडिट कर देते हैं. बटन फोकस और इस पर आउटलाइन जो होगा उसको हटा देते हैं, नॉन. ओके, डन. अभी थोड़ा सा देते हैं बॉर्डर रेडियस. सब कंटेनर पर एक 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर देते हैं पहले. थोड़ा सा कलर को लाइट कर देते हैं और कर देते हैं लाइट. Let's give some border radius 12 pixel. Now we have completed the CSS part. Now I will write in the onClick attribute toggle password. Now this onClick attribute will triggers a JavaScript function when the button is clicked. Now in JavaScript, I will write function toggle password parenthesis semicolon and constant password. Let's say password field. जो हमारा पासवर्ड फील्ड है उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. अब एक चीज़ को ध्यान करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस जो फंक्शन होगा उसको अभी इन ब्रैकेट्स में, ये जो कार्ली ब्रैकेट्स है ना, उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ. यहाँ पर ये बटन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है. ये बटन है जहाँ पर मेरा वो फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने फंक्शन पे पहला लाइन जो है वो लिख दिया. मतलब मैं किसी काम के लिए कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, किसी बंदे को अगर ऑर्डर दे रहा हूँ तो उसका पहला लाइन क्या है, पहला लाइन ये है कि तुम उस बटन में जो है, मतलब कांस्टेंट
मैंने क्या लिख दिया, पासवर्ड फील्ड। जो पासवर्ड फील्ड है ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और इस वेरिएबल की मदद से हम किस आईडी को गेट करने वाले हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने लिख दिया। तो एक चीज़ है जिसकी हम आईडी को गेट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पासवर्ड फील्ड लिखा, मतलब मैं इनडायरेक्टली कहने के लिए ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो इनपुट है ना, जो इनपुट है उसका कंट्रोल मुझे चाहिए। जो इनपुट है जहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं उसका कंट्रोल मुझे चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी जो आईडी है उस आईडी को मैं इधर लिखने वाला हूँ जो कि हमारा पासवर्ड है। तुम जाके HTML में चेक करो, जो हमारा आईडी है वो पासवर्ड है। अगर मैं उस इनपुट की आईडी, इफ आई पुट द इनपुट आईडी इनसाइड दिस पेरेंथेसिस इनसाइड द क्वोट्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस इनपुट का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में आ जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इस पूरे इनपुट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट पर, पासवर्ड फील्ड जो वेरिएबल है उसको यूज करने वाले हैं। तो ऐसा समझ सकते हो कि मैंने इनपुट को एक स्पेशल नाम दे दिया पासवर्ड फील्ड बोल के। और जब भी हम पासवर्ड फील्ड के बारे में बात करेंगे तब हम इनडायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मुझे क्या करना है, जो बटन है जहाँ पर मेरा कटा हुआ आंख या तो अनकटा हुआ आंख लगा हुआ है, उस बटन को मुझे गेट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने एक आईडी डिक्लेयर किया था उस बटन के लिए, दैट इज शो डैश हाइड। ये है मेरा आईडी और अभी इस आईडी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मेरा जो बटन है उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं क्या लिखूंगा, एक इफ एल्स लॉजिक लिखूंगा यहाँ पर, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप। पासवर्ड फील्ड मैंने क्या बोला था, जब भी मैं पासवर्ड फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ यानी इनपुट के बारे में बात कर रहा हूँ, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप इज स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर टाइप जो है वो पासवर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर आप देखोगे कि जो HTML है वहाँ पर टाइप पासवर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब जब मैं उसको टाइप कर रहा हूँ ब्राउजर में जाकर वो हिडन होकर आ रहा है, बट जब मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, देख रहे हो अभी देख रहे हो मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और वो क्या हो गया, हमें वो दिखने लगा, अनहाइड हो गया। तो इसी चीज़ को असल में हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे डायनेमिकली चेंज करना है। सो मैंने क्या लिख दिया इसके लिए, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप, देन आई विल राइट पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप। जब मेरा पासवर्ड फील्ड यानी जब मेरा इनपुट स्ट्रिक्टली पासवर्ड के इक्वल है, तब अगर मैं बटन को क्लिक करता हूं, अभी जब तब ऐसा चलता रहेगा, अगर मगर जब तब, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम इफ यूज कर रहे हैं। तो पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप को तुम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो अगर मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देन द नेक्स्ट लाइन हाइड डॉट सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाइड आई को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, पहले कॉन्स्टेंट लिख लो भाई, कॉन्स्टेंट हाइड आई, मतलब जो SVG आइकन है ना उनको भी तो मुझे डायनेमिकली चेंज करना है। जब मेरा डायनेमिकली पासवर्ड टेक्स्ट में चेंज होगा, टेक्स्ट के बाद पासवर्ड में चेंज होगा, तो उसी तरह से मेरा आंख एक बार खुलना चाहिए, एक बार बंद होना चाहिए, एक बार कट लगना चाहिए, एक बार नहीं लगना चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी हाइड आई को लिख रहा हूँ इधर। यहाँ पर आप देखो मेरा जो SVG यहाँ पर हाइड आई नाम का एक आईडी है SVG पर। एंड देन मुझे फिर से ये काम दूसरे के लिए भी करना है, जो शो आई है उसके लिए करना है। राइट कॉन्स्टेंट पेस्ट कर दो यार, कॉपी करके सिंपली यहाँ पर शो लिख दो और यहाँ पर भी आपको शो लिख देना है, शो आई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय शो। तो हाइड आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, जिस समय मेरा टेक्स्ट दिख रहा है, जिस समय मेरा टेक्स्ट मोड में है, उस मोड पे जो हाइड आई है उसको डिस्प्ले इनलाइन कर देना चाहिए मुझे। यानी जब दिख रहा है टेक्स्ट उस समय वो बटन लगाओ जो बोल रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड कर दो। अगर हाइड नहीं है तो आई जो कटा हुआ आई है ये बोल रहा है कि हाइड कर दो। तो मुझे अभी दूसरा क्या करना है, शो आई को डिस्प्ले नॉन कर देना है, डिस्प्ले नॉन करना है, जिससे क्या होगा, शो आई है वो नहीं दिखेगा। किस समय नहीं दिखेगा, जब टेक्स्ट मोड पे है। इसी चेंज इसको उल्टा कर देना है एल्स में जाकर, एल्स कर्ली ब्रैकेट पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप, अगर मगर कर दो इसको पासवर्ड में। देन हमें क्या चाहिए, जब पासवर्ड मोड पे है तब मुझे क्या चाहिए, हाइड आई को डिस्प्ले नॉन कर देना है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नॉन, एंड शो आई को डिस्प्ले इनलाइन कर देना है, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इनलाइन। तो पूरा जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो हो गया। अभी मैं कोई पासवर्ड टाइप करता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ, आपको दिख रहा है
टेक्स्ट मोड पे चला गया और जो आई है उस पर कट लग गया, मतलब कट लगने वाला आई है जो वो क्या हो रहा है हमें दिखाई दे रहा है, और जो कट ना लगने वाला आई है जो शो आई है वो हमारा हट गया। अगर मैं अगेन क्लिक करूंगा इस पे, देख रहे हो, अगर मैं अगेन क्लिक करूंगा तो आई क्या हो गया, वो ना कट ना लगने वाला आई जो है वो सामने आ गया और हमारा जो पासवर्ड है वो हिडन मोड पे चला गया। फिर से एक बार क्लिक करते हैं तो फिर से हो गया, फिर से एक बार। तो इस तरह से क्लिक करते रहेंगे तो ये काम करता रहेगा बिंदास। बट आप जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इनिशियली देखो, इनिशियली क्या है, दोनों आंखें जो है मुझे दिख रहा है। तो इसी को मुझे रिमूव करने के लिए, इसी चीज़ को मुझे हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तुम ये चेक करो कि इनिशियल मोड पे जब पहली बार नया नवेला जब पेज खुल जाएगा उस समय क्या होगा, हिडन मोड पे रहेगा। तो यानी मुझे जो खुलने वाला आया है, कट ना लगने वाला, नॉन कट वाला आया है, उसको मुझे डिस्प्ले इनलाइन रखना है, और जो कट आए है यानी हाइड आए हैं उसको मुझे डिस्प्ले नॉन कर देना है। तो मैं यहाँ पर उस आईडी को लिखूंगा, शार्प हाइड आईडी, सॉरी हाइड आई एंड डिस्प्ले नॉन। नाउ यू कैन सी जो अभी जो इनिशियल पेज बन रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो भाई हमें सिर्फ एक ही आई दिख रहा है जो कि हमारा खुला हुआ आए है, शो आए है। इस पर क्लिक करूंगा एक बार तो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये होगा मैजिक। मैजिक में ये इसको साइंस बोलते हैं, साइंस।